Dear student, today our topic is differentiation. In class 12th, this chapter differentiation is very important chapter. Some concepts you have already studied in class 11th like product rule, quotient rule and chain rule. You know that what is the meaning of the differentiation? Differentiation or derivative of a function y is equal to fx is the rate of change of y with respect to x. तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to fx, रियल वैल्यूड फंक्शन, so the rate of change of y with respect to x, जिस रेट से x चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में y का रेट ऑफ चेंज क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव. The differentiation of a function is denoted by dx or f dash x or y1 और y dash, इससे हम इसको डिनोट करते हैं. तो 11th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि हाउ विल यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंट टाइप फंक्शंस के डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. बेसिकली इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 we differentiate the various type of the functions like inverse trigonometric functions, implicit functions, parametric forms and the differentiation of one function with respect to other function and differentiation of by taking log and second derivatives. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर स्टडी करनी है. इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मूले पर. तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूलाज. फर्स्ट इज, ये आपने 11th में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज n x रेज टू द पावर n माइनस 1. Second is differentiation of a raised to the power x is a raised to the power x log a. Third is differentiation of e raised to the power x is e raised to the power x. These are called exponential function. This one is called algebraic function. Fourth is differentiation of log e base x is 1 by x. और अगर कहीं पर log का बेस नहीं है तो वहां पर अंडरस्टूड log बेस e ही वहां पर कंसीडर करेंगे. बट अगर log का बेस e नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो सबसे पहले हमने उसका बेस चेंज करना है. सपोज log a base x, तो यू कैन राइट डाउन एज log e base x अपॉन log e base a. आप इसको लिख सकते हैं. फिफ्थ वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x. Sixth is differentiation of cos x is minus sin x. Seventh is differentiation of tan x is sec square x. Eighth is differentiation of cot x is minus cosec square x. And ninth is differentiation of sec x is sec x into tan x. Tenth is differentiation of cosec x is
माइनस cosec x into cot x. 11th is differentiation of under root is 1 upon 2 under root. ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं और आपने देखा है कि यहाँ पर एक अभी टॉपिक हमारा इसमें 12th में ऐड हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपने उनके भी डेरिवेटिव यहाँ पर करने हैं. So differentiation of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. 13 is differentiation of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. 14 is differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Differentiation of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. 16 is differentiation of sec inverse x is 1 upon x under the root x square minus 1. And 17 is differentiation of cosec inverse x is minus 1 upon x under the root x square minus 1. तो ये कुछ और हमने यहाँ पर ऐड किए हैं क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा 12th में ऐड हुआ है तो उनके भी हमें डिफरेंशिएशन करने हैं. तो these are some formulae which you should be have remember every time. After this, properties of derivatives. Next are properties of differentiation. In this subtopic or points remember to be remembered, first property is differentiation of fx plus minus gx. So differentiation of fx plus minus differentiation of gx. और सीधा मीनिंग है कि if the given function is the sum of two function or difference of two functions, so you can differentiate both of them or every function you can differentiate separately by taking sign between them plus or minus. Second, differentiation of k is 0 where k is constant. Third is differentiation k times of fx. So k times of differentiation of fx where k is scalar multiple. K is scalar multiple. Fourth is differentiation of fx into gx. Means when the given function is the product of two or more functions, so we can differentiate it by product rule, that is first as it is differentiate second plus second as it is differentiate first, and this one is called product rule. यानी जहां पर फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो वहां पर आप प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव. ध्यान रखिए बीच में साइन क्या आना है प्लस.
Fifth, when the given function is division of two or more functions, अगर हमारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो वी कैन डिफरेंशिएट इट बाय कोसेंट रूल, एंड कोसेंट रूल इज स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर differentiation of numerator minus numerator or differentiation of denominator. You can learn it as square of denominator, differentiation of numerator minus numerator, differentiation of denominator, and this rule is called quotient rule. इसको हम कहेंगे quotient rule. Next is sixth, differentiation of f of g of hx. That is, this is the composition of the function or function to a function. अगर इस तरह का फंक्शन है f composition of g composition of h, तीन फंक्शंस का composition है, so we can differentiate as first differentiation of f g of hx into differentiate second g of hx into differentiate of third hx. अब आगे चल सकते हैं और इसको हम कहते हैं चेन रूल, एंड चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डेरिवेटिव, बिकॉज so many times a student miss this rule in many questions. तो चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेरिवेटिव का. पहला फंक्शन और अंदर एंटर करें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर और अंदर एंटर करें, यानी चेन रूल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आप एंटर करते जाएं और उसको डिफरेंशिएट करते जाएं. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच यू विल यूज टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन. थर्ड में हम इस चैप्टर में थर्ड जो डिस्कस करने वाले हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच यू विल डिफरेंशिएट इन दिस चैप्टर. So next is type of functions. Type of functions. First, differentiate of inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. पहला टाइप है कि यहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको आप डिफरेंशिएट करेंगे. सेकंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. Implicit functions. Third is logarithmic differentiation. Fourth is differentiation of parametric forms. Parametric forms or different functions. Fifth है differentiation of infinite functions. Sixth is
डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to other function। और सेवंथ है डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और बेसिकली यहां पर हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमने केवल सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल यहां पर करने हैं। तो इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन में इन टाइप के फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव करना है। प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूं, फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं, और यही सारी चीजें हम यूज करके हम यहां पर अब डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और वेरियस टाइप ऑफ द फंक्शंस। सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम केवल प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल यूज कर रहे हैं। अभी हम तीन रूल पर बेस क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन 3x plus 5 with respect to x। बहुत सिंपल सा अभी हमने केस लिया है, डिफरेंशिएट साइन 3x plus 5। सबसे पहली बात, जिसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है उसको आपने y या fx से डिनोट करना है, तो फंक्शन y इज साइन 3x plus 5। यहां पर हम नोट करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ऑफ y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x plus 5। अब यहां पर जब डिनोट करेंगे तो ये तो आपको एक सिंबल प्रोवाइड करेगा डेरिवेटिव का dy by dx। जब यहां पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आगे साइन आपके पास है, और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। तो जो फंक्शन सबसे पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट अस सपोज दिस वन इज x, सपोज करिए x है, तो ये हमारे पास एज ए साइन x है, साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है cos। तो दिस वन इज cos, इसको अभी हमने नहीं देखना है, मैंने कंसीडर किया दिस वन इज x, लेकिन ये है, ये एज इट इज यहां पर रखेंगे 3x plus 5, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव किसका किया है, साइन का। अब फॉर्मूला जो है वो है साइन x, और यहां पर है x के प्लेस पर 3x plus 5, तो आप क्या कहेंगे इसको, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अगर ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है तो यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, और चेन रूल ये है कि पहला डिफरेंशियल आपने इसका किया, दूसरा फंक्शन क्या है उसको डिफरेंशिएट करें 3x plus 5। तो पहला डिफरेंशियल साइन के लिए, फिर आगे चले तो आपको क्या मिला, पॉलिनोमियल, फिर दूसरा डेरिवेटिव पॉलिनोमियल। तो ये चेन रूल हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सो cos 3x plus 5 और 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 5। सो cos 3x plus 5, 3x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 और 5 का 0, तो आंसर इज 3 cos 3x plus 5। ये डिफरेंशियल आ जाता है, और हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज की है, और अब हमने चेन रूल यहां पर यूज किया है। सिमिलरली आप ऐसी और भी एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, डिफरेंशिएट tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू x। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहला काम
मैंने इसको fx डिनोट करना है या y डिनोट करना है 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री. There is a problem to differentiating such type of the function. We want to differentiate with respect to x, but our function in terms of the degree. तो जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है पहले वो उस फंक्शन को उसकी टर्म में लेके आइए. तो पहले यहाँ से डिग्री हटाइए, पहले इसको x की टर्म में कन्वर्ट करें और फिर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे. तो अगर डिग्री को आपने यहाँ पर हटाना है तो इसको रेडियन फॉर्म में लेंगे. तो x डिग्री हटा दीजिएगा प्लस 45 और यहां पे आ जाएगा पाई अपॉन 180. तो ये हमने इसको x की टर्म में कन्वर्ट किया. अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x. आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 10x प्लस 45. अब डिग्री यहां पे नहीं है, अब ये रेडियन में, रेडियन का मतलब ये x की टर्म में. नाउ differentiate with respect to x. So differentiation of fx, differentiation of pi upon 180 10x plus 45. यानी we want to differentiate both side with respect to x. इस तो आ जाएगा f dash x symbol of the derivative. अब इधर डिफरेंशिएट करें तो यहां पर आप प्रॉपर्टी लगाइए दिस वन इज कांस्टेंट. ये पहले आ जाएगा, इसका आपने कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है. डिफरेंशिएशन किसका होगा 10x प्लस 45. हमने सेकंड प्रॉपर्टी यूज की है डिफरेंशियल ऑफ k टाइम्स ऑफ fx. तो k को बाहर लेके आएंगे, डिफरेंशियल fx का करेंगे. तो पाई अपॉन 180 पहला डिफरेंशियल आप करेंगे 10 के लिए. तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर और x प्लस 45. So first differentiate this one is just like x. So we have read this one as 10x और differential of 10x is sec square. But यहाँ पर composition of a function है, होना चाहिए था x, है x plus 45. तो चेन रूल अप्लाई करेंगे और x plus 45 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. So this is pi upon 180 sec square x plus 45. Differential of x is 1 और differential 45 is 0. प्लस का साइन है, दोनों पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करें. डिफरेंशियल ऑफ x with respect to x is 1 और 45 का डेरिवेटिव 0. So sec square x plus 45 and pi upon 180 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको वापस डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री. तो ये इसका यहां पर आंसर है. नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉब्लम इज differentiate 3 raised to the power e raised to the power x. Differentiate 3 raised to the power e raised to the power x. So denoted by fx, the given function is 3 raised to the power e raised to the power x. Now differentiate with respect to x d upon dx of fx or differentiate 3 raised to the power e raised to the power x. The derivative of fx is denoted by f dash x. अब यहां पर जो पहली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर है constant raised to the power function, so this one is just like a raised to the power x. The derivative of a raised to the power x is a raised to the power x log a. तो ये कांस्टेंट है, ये a raised to the power. सपोज करिए this one is x, so this function just like x, तो 3 raised to the power x just like a raised to the power x. तो डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग होगा पहला. तो
a raised to the power x, यानी this function as it is e raised to the power x and log a means 3। तो पहला डिफरेंशियल हमने किया है, अगर ये 3 raised to the power x का एक्ट कर रहा है तो x 3 raised to the power x के अकॉर्डिंग ये डेरिवेटिव होगा। बट यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन है, होना चाहिए था x, यहाँ पर है e raised to the power x, तो यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे किसका, e raised to the power x। सो 3 raised to the power e raised to the power x into log 3, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power x is e raised to the power x, और फाइनल आंसर लिखेंगे e raised to the power x 3 टाइम raised to the power x and log 3, ये डेरिवेटिव इसका। सिमिलरली फॉर डिफरेंशिएट साइन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x, इसका भी आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको भी मैं y या fx से डिनोट करूंगा, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, और यहां पर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy dx ऑफ y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ log x। तो ये तो आप डिनोट करेंगे dy by dx से। सबसे पहले यहां पर साइन आपके पास आता है तो पहला डिफरेंशिएट करेंगे साइन के अकॉर्डिंग, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos और दिस वन इज जस्ट लाइक x। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ साइन, बट दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो चेन रूल लगाएंगे और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log x का। सो cos of log x, derivative of log x is 1 by x, that is f dash x is 1 by x and cos of log x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। चूंकि यहां पर log का कोई भी बेस नहीं है तो यहां पर हमने क्या कंसीडर किया है, इसका बेस e, और log e बेस x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं चेन रूल पर बेस। आगे अभी इसी टाइप के और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।